I am not comfortable with intimate scenes and any of the scenes that have a sexual nature. So as the tagline says, इस बार रणनीति नहीं राजनीति से पूर्वांचल बनेगा रक्तांचल. जैसे आपके फादर की शायरी अगर आज कोई पढ़े तो आई डोंट थिंक 5% लोग भी उसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. वो दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, वो सबको समझ में आएगा. हाँ, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, शहर में हर शख्स परेशान से क्यों है. हमारी इंडस्ट्री का एक्चुअली आई थिंक ये एक दस्तूरी है, चाहे आप प्रोटैगनिस्ट प्ले करें या एंटागनिस्ट प्ले करें, आप जिस भी जोन में होते हैं तो उसी जोन में आपको टाइपकास्ट कर दिया जाता है. पूरा ज्ञान है हमें कि people are exposed to a lot of world cinema thanks to OTT. मैं बिहार का हूँ, तो अगर मैं बिहार के किसी कुजीन के बारे में कुछ पोस्ट कर रहा हूँ तो सबका एक ही सवाल होता था, या कोई फेस्टिवल हो तो उसमें भी वही कि भाई रक्तांचल कब आ रही है. तो सीजन 2 में सबसे अच्छी बात यह है कि ये और बड़ा है और बेहतर है. Hi Nikitan and Kranti, welcome on Bordering Armor. Hi Farid, how are you doing? Very well, man, very well. All right, so Raktanchal Part 2 is, I believe it's around the UP politics, and we are having UP elections around the corner as well. So it's quite a timing. Yeah, our series is a political drama, especially in the season 2, and but it's different from today's political scenario. It's based, like it says, it's based on true events, but we fictionalized it, and it's from a different time. So politics was done a little differently. So it's just, I think, whatever we make is more for entertainment purposes, and I think you know that better than anybody else. All right, Kranti, tell us, what is your perspective on Raktanchal Part 2? So as the tagline says, इस बार रणनीति नहीं राजनीति से पूर्वांचल बनेगा रक्तांचल. So that's how we have taken season 2 as well. So it's more about politics, mind games, and how politics of 90s defined UP or maybe Bihar or the whole India. So it's more about that. And there are different characters in season 2, and we are very excited about finally this hard work is coming out on the 11th of February. So I'm more excited about that. क्या आपको ऐसा लगता है कि सिनेमा हम जब देखते हैं, फिल्म जब हम देखते हैं, तो मे बी शायद थोड़ा सा हमारे पास वक्त कम होता है कि चीजों को हम एस्टैब्लिश कर पाएं. जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, सो बहुत से लोगों को, मतलब जैसे जो और स्टेट्स में इंडिया में रहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश उनको पता है एज अ स्टेट, बट मे बी उसमें जो एक सर्टेन जो सेगमेंट्स हैं उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है. लाइक पूर्वांचल इज समथिंग दैट विल बी नोन टू पीपल फ्रॉम से उत्तर प्रदेश प्राइमरली और बिहार जनरली. सो डू यू थिंक दैट एक सीरीज लाइक रक्तांचल में एक आपको मौका मिलता है उन सब चीजों के ऊपर डिटेल में बात करने का, उसको एस्टैब्लिश करने का? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग विदाउट यूपी पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स कैन नेवर गो हेड. सो इवन people from south, they must be knowing UP, and after Mirzapur or gangs of Wasipur, so many people got to know about these places, especially in Bihar and UP. So I think it helps a lot, and especially when you talk about web series, then we have more freedom for storytelling and the narrative, and we don't have those constraints which we find in the films. And I think it really helps very much, especially the detailing. What about you, Nikitan? क्या आप पे क्या मानना है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं बॉम्बे में ही पला बड़ा हूँ, और हमारी एक जो यहाँ पर एक जनरल नॉलेज रही है ग्रोइंग अप, वो जो मेरे कजिन्स और मेरी फैमिली यूपी में पली बड़ी है उनसे बहुत अलग रही है. तो जब वेब सीरीज बनते हैं और एक आपको कहानी सुनाई जाती है ऑफ अ टाइम एंड अ स्पेस दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, जिस माहौल में आप पले बड़े, ये एकदम उससे विपरीत माहौल है. So I think it's apart from entertainment, it's also educational, कि एक ऐसा भी दौर था, ऐसे भी लोग थे आप ही के देश में. So I think web series का सबसे बड़ा advantage ये है that you get to say stories that are different, that are bold, that are perhaps one would think about a few times before making a film on it. लेकिन web series का एक ऐसा space इतना beautiful हो गया है कि stories have taken the forefront again. And I think that in itself जो है is the strength of web series as a whole, and even रक्तांचल जो एक हम कहानी बताने जा रहे हैं. जैसे जब सीजन 1 आया था, बहुत से मेरे दोस्त जो बॉम्बे में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, उन्हें पता ही नहीं था कि
व्हाट इज पूर्वांचल, अच्छा उत्तर प्रदेश के ही इस पार्ट को पूर्वांचल कहा जाता है, अच्छा दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जो आते हैं. So I think a lot of cinema and has changed the your scope of vision, और धीरे धीरे लोग भी पढ़ने लगे हैं. I think it's overall it's a good thing जो हो रहा है. We are seeing different stories. जैसे आपके फादर की शायरी अगर आज कोई पढ़े तो I don't think 5% लोग भी उसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. उनकी उस किस्म की काबिलियत ही नहीं, ना वोकैबुलरी है. अच्छा, that's interesting. That's a different, I think, subject of discussion. I think वो दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, वो सबको समझ में आएगा. हाँ, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, शहर में हर शख्स परेशान से क्यों है, तो वो तो समझ में आएगा आई थिंक आसानी से. बट या आई थिंक आई एग्री, वो थोड़ा सा तो आई थिंक इसी चीज को आगे लेके चलते हैं. क्या आपको लगता है कि एट टाइम्स थोड़ा सा डम्बिफिकेशन एट टाइम्स हो जाता है, ओवर सिंप्लीफिकेशन में कहीं ना कहीं पब्लिक को ये समझना है कि उनको तो पता ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एक हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोगों को या जनरल व्यूइंग पब्लिक को. मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू एज डायरेक्टर्स हैं और जो चाहे एक्टर्स हों, हम सब वी आर ऑल लवर्स ऑफ सिनेमा, वी ऑल वर्शिप सिनेमा. तो हमें इस बात का वी आर फुली अवेयर, इस बात का जो है पूरा ज्ञान है हमें कि पीपल आर एक्सपोज टू a lot of world cinema thanks to OTT and thanks to all the different various platforms that showcase that kind of overall material to you. So I think it would be the most naive thing for any filmmaker or an actor to think कि हमारी audiences को पता नहीं है or they can be fooled. So I think we are fully aware that what is the intellect of a viewer. And today everyone has Google at the fingertips, so it's very easy to counter check facts, and so I think we've become in fact more aware and we've tried to be more careful कि जो चीजें हम कर रहे हैं, जो एक दौर हम दिखा रहे हैं, जो एक टाइम एरा दिखा रहे हैं, things should be correct. So I think it's in fact the opposite. All right, so Kranti, I'll come to you shortly, but continuation of this conversation with Nikita. आपको जिस तरीके से फिल्मों में प्रेजेंट किया गया है, क्या आपको लगता है कि कुछ हद तक एक स्टीरियोटिपिकल तरीके से एक आपका बना दिया गया है in terms of that negative lead and villainy and all those things? लेकिन जब हम यहाँ पर रक्तांचल में देख रहे हैं आपको वसीम के किरदार में, तो ये पूरी जिस तरीके का आपका कैरेक्टर बिल्डिंग किया गया है, चाहे वो आपका लुक है या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशन है, वो ऐसा है जो कि मे बी अब तक आप उस तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किए गए. हाँ, सही कहा आपने. और हमारी इंडस्ट्री का एक्चुअली आई थिंक ये एक दस्तूरी है, चाहे आप प्रोटैगनिस्ट प्ले करें या एंटागनिस्ट प्ले करें, आप जिस भी जोन में होते हैं तो उसी जोन में आपको टाइपकास्ट कर दिया जाता है, एंड इट टेक्स अ व्हाइल टू ब्रेक इट. और मेरा डील डॉल ऐसा है, माय स्ट्रक्चर इज सच दैट पीपल लुक एट मी इन अ सर्टेन वे, लेकिन मेरी कोशिश है कि टू ब्रेक आउट ऑफ दैट बॉन्डेज इन अ वे एंड शो पीपल दैट एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन एक्टर एंड आई नो माय जॉब. इसलिए फिल्म लाइक शेरशाह व्हेन इट केम माय वे इट हेल्प्ड अ लॉट. एक अलग किरदार, एक आउट एंड आउट पॉजिटिव किरदार, एंड लोगों को बहुत अच्छा लगा. सो सिमिलरली विद रक्तांचल, जैसे आपने कहा, वी हैव लेयर्स टू हिम, एंड मोर देन एनीथिंग इज अ कैरेक्टर. वसीम खान इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, with a very interesting psyche. तो we are getting a chance to show that. So I think वो बहुत overall is refreshing also, you could say, and interesting for me as an actor. Yeah, I think that's what it is, and I'm trying my best to do different roles. As a villain also, I've tried my best to not be repetitive. And all right, okay. क्रांति, एक बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग दौर है जहाँ तक कंटेंट की बात अगर हम करें तो OTT भी जब स्टार्ट हुआ था तो एक बहुत से लोगों का एक परसेप्शन ये था कि दैट आई थिंक इट इज एन इजी व्हीकल कि आप उसमें गालियां और सेक्सुअल कंटेंट और ये सब चीजों को आप भर दीजिए और फिर वो चलना ही चलना है. लेकिन फिर ग्रेजुअली लोगों को ये समझ में आया कि अभी नाउ इट हैज बिकम सो मेन स्ट्रीम कि इतने ज्यादा लोग कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं कि कुछ हद तक एक चर्निंग हो रही है, और ये समझ में आ रहा है कंटेंट क्रिएटर्स को भी कि आपकी एक मे बी लार्जर ऑडियंस बनती जा रही है, और उसमें आपको भर्ती का सेक्सुअल कंटेंट जरूरी है तो जरूरी है, लेकिन भर्ती का मत डालिए, भर्ती का गाली गलौज मत डालिए, एंड फोकस ऑन द स्टोरी टेलिंग, बिकॉज लोग कहानी को जो है अपने साथ लेके जाएंगे. मनी हाइस्ट की कहानी को लोग अपने साथ लेके जाते हैं. क्या आपका मानना है कि रक्तांचल पार्ट 2, एटलीस्ट जितना मैंने देखा है प्रोमो से, मुझे लगता है कि ये उसी दिशा में जा रहा है?
कैसे देखते हैं आप इसको? सर मेरा मानना है कि आज की जो दुनिया है उसमें जब आपके पास आपके हथेलियों पे आपके पावर दे दी गई है कि आप किसी चीज को पसंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो कि ये पब्लिक सब जानती है क्या उनको अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। और आज की डेट में अगर आप देखें तो शायद 2 दिन के अंदर किसी भी कहानी के बारे में पब्लिक अपने रिव्यूज लेके चली आती है कि उनको अच्छी लगी या नहीं अच्छी। रक्तांचल के साथ सबसे जो एक खास बात है वो ये है कि सीजन 1 में अगर लोगों को सबसे ज्यादा जो पसंद आया वो था वसीम खान और विजय सिंह के बीच की जो दुश्मनी है, क्यों बनी, कैसे बनी और कैसे वो आगे बढ़ी। तो इट वॉज मोर हाई ऑन एड्रेनल रश जिसको कहते हैं। तो लोगों को वो जो एक रॉनेस थी दोनों किरदारों के अंदर वो बहुत पसंद आई। तो आई एम श्योर निकितन भी इस बात से सहमत होंगे कि जब कभी हम लोग कुछ भी ऐसा पोस्ट भी करते हैं सोशल मीडिया पे कि कोई अगर पर्सनल बात हो या फिर कुछ कोई भी चीज हो, तो सबके पास यही सवाल था कि रक्तांचल, अरे ये सब तो ठीक है, रक्तांचल कब आएगी। अब अगर किसी बिहार में, मैं बिहार का हूँ, तो अगर मैं बिहार के किसी कुजीन के बारे में कुछ पोस्ट कर रहा हूँ तो सबका एक ही सवाल होता था, या कोई फेस्टिवल हो तो उसमें भी वही कि भाई रक्तांचल कब आ रही है। तो सीजन 2 में सबसे अच्छी बात यह है कि ये और बड़ा है और बेहतर है और नए किरदारों के साथ एक ऐसी कहानी एमएक्स प्लेयर आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसमें जो आपको बहुत ही हुक्ड रखेगी, कहीं भी आपको जाने नहीं देगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं रक्तांचल सीजन 2 का। निकितन, क्रांति ने मेरे सवाल का जवाब पूरे तरीके से नहीं दिया है। मैं आपके पास आता हूँ इस सवाल को लेकर। क्या आपको लगता है कि जो स्टोरी टेलिंग है, अब ये कंटेंट क्रिएटर्स को समझ में आ गया है कि उस पर ज्यादा फोकस इंपॉर्टेंट है बनिस्बत भर्ती का सेक्सुअल कंटेंट और गाली गलौज डालना, एंड रक्तांचल मे बी इट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन ऑफ स्टोरी टेलिंग? क्या कहते हैं? मुझे लगता है शुरू से ही रक्तांचल वाज इन द जोन ऑफ स्टोरी टेलिंग। वी नेवर वर हमारा झुकाव उस तरफ था ही नहीं टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी और एनी ऑफ दैट थिंग। यस, हमें हमारे फर्स्ट सीजन में द लैंग्वेज वाज, जिसे कहते हैं, अभद्र भाषा थी, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोग हैं, आप अभी यूपी के गैंगस्टर्स हैं और उनको दिखा रहे हैं आप, तो अगर वो जरा तमीज से बात करेंगे तो आपका ऑडियंस वहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वी ट्राई टू कीप दैट रियल कि जब एक गैंगस्टर बात करेगा, बदतमीज, निहायत बदतमीज इंसान है, तो वो बदतमीजी से ही बात करेगा। उसे तमीज ही नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, किससे क्या बात करनी है। Number one, we kept that, and I think answering your question, I think series like Special Ops, series like Scam in India have proven that with zero sexual content and bad language or whatever it is, by pure storytelling and by pure being very true to your narrative, आप ऑडियंस का दिल जीत सकते हैं। तो हम भी इसी फिलॉसफी के साथ चल रहे हैं। हम सीजन 1 में भी इसी फिलॉसफी के साथ चले थे। वी वर वेरी ट्रू टू आवर स्टोरी। हमने कुछ भी फॉर द सेक ऑफ इट नहीं किया, सेंसेशनल होने के लिए नहीं किया, एंड आई थिंक वी आर कीपिंग द सेम स्पिरिट इवन इन दिस टाइम। और हमारी जो कहानी है, वी हैव ऑल एज एक्टर्स, आवर डायरेक्टर, आवर राइटर्स हैव बीन ट्रू टू दैट। एमएक्स, द वे वी आर प्रेजेंटिंग इट, वी आर सेइंग व्हाट इट इज। दिस टाइम इट्स मोर देन, जैसे क्रांति ने कहा, पिछली बार 2 किरदारों के बीच की कहानी थी। देयर वर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैंगस्टर्स। एक गैंगस्टर बना चॉइस से, एक बना हालात से। these are the 2 type of people in life. अब ये दोनों की कहानी आगे बढ़ती है और अलग किरदार अंदर आते हैं। So it grows, the story grows, the characters grow. So it's a very organic growth. And I think जो लोग रक्तांचल के फैन हैं, जिन्हें ये सीरीज पसंद है, उन्हें ये सब अच्छा लगेगा। और we have tried our best to be honest towards it. And as far as your question, I think I've answered it pretty clearly. I think you have. So basically मेरा कहना ये था कि that भाषा या फिर सेक्सुअल कंटेंट है, अगर जरूरत है उसकी, अगर वो एक कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है, तो वो डेफिनेटली वो होना चाहिए उसमें। दैट इज समथिंग आप फोर्सफुली उसको मत हटाइए जी। लेकिन मेरे ख्याल से एटलीस्ट कुछ टाइम पहले थोड़ा सा कुछ भर्ती का एक लग रहा था कि भर्ती में डाला जा रहा है कि जस्ट टू मेक इट साउंड। आई कंप्लीटली अग्री विद यू। वो थोड़ा सा ऑड लगता था। आई थिंक आई अग्री विद यू कंप्लीटली। और ये इसमें ना मेकर्स का फॉल्ट नहीं है, ये हमारे ऑडियंस की गलती है। जो as a viewer and as an audience, whatever you consume, the algorithm shows what you're liking more. तो फिर वैसा ही कंटेंट बनेगा। जब आप स्टोरी ड्रिवन चीजों को पसंद करेंगे, then makers will give it a thought कि यार people are liking the fact that आप एक कहानी बता रहे हो, एक इंसान की कहानी, एक जगह की कहानी, एक समय की कहानी, and that is working. So when that turn takes place by the audience, then automatically that kind of content is given out.
जैसे एज एन एक्टर शुरू से मेरा ये मानना रहा है कि I am not comfortable with intimate scenes and any of the scenes that have a sexual nature. I'm not comfortable on a cellular level for some reason. I may be totally wrong as an actor to say that because actors have to be open, but that is has always been my stand. But in this character, for the very first time, from the kind of work I have done, my character has extremely bad language. But when I spoke to my director about it and he explained to me why he is the way he is, it made absolute sense to me. So that is the reason why my character is very like coarse in the way he talks. उसकी बात करने का तरीका, जैसे मैंने आपसे कहा, निहायत ही बदतमीज इंसान है. उसे बड़े छोटे की तमीज नहीं है, क्या बात कहाँ करनी है तमीज नहीं है. He doesn't care. लेकिन हमने ये बात पे बहुत फोकस किया कि जो भी आपकी इंटीमेसी इज ओनली इफ and when required, by whom if required. Otherwise, if our narration of our story does not require it, we have not kept anything of that sort. And that is all thanks to the audience. Today, the audience only is telling us what they want to see. At the end of the day, I feel all forms of cinema, जैसे मंटो ने कहा था ना कि it is a mirror to society. His books are a mirror to society. In the same way, cinema, OTT, आपके web, आपका television is a mirror to society. आपको जो देखना अच्छा लगता है वही बनेगा. अगर आप उसे रिजेक्ट कर देंगे एज एन ऑडियंस तो फिर कुछ नया आएगा. आई थिंक दिस इज ऑलवेज बीन द रूट ऑफ थिंग्स. क्रांति, जैसे हमने बहुत ही दिलचस्प किस्म के आई थिंक डिस्कशंस हो रहे हैं आजकल. बहुत सी दिलचस्प किस्म की चीजें सामने आ रही हैं. जैसे अगर हम देखें तो जो बिगेस्ट फिल्म है, अगर फुटफॉल्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो वो जो है 3-4 करोड़ इस तरीके 4.5 करोड़ मैक्सिमम जो भी है वो फुटफॉल्स उसके अंदर सामने आते हैं. लेकिन जो रीच से फॉर एग्जांपल अ प्लेटफॉर्म लाइक MX Player की है, जैसे हमने आश्रम का में देखा कि करोड़ों में उसके व्यूज हुए जिस तरीके से लोगों ने उसको कंज्यूम किया है. बिकॉज एक तो ये है कि दैट इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू सब्सक्राइब दिस प्लेटफॉर्म. और उसकी वजह से जो एक आम लोगों का तबका है वो इसको बहुत प्रेफरेंस देता है. तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि दैट कंटेंट को मोबाइल पे कंज्यूम किया जा रहा है, कंटेंट को फ्री कंज्यूम किया जा रहा है, और कंटेंट ऐसे जगहों पे पहुंच चुका है जहां पर लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि लोग जो हैं वो देखेंगे इसको. इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री, ऑल अक्रॉस कंट्री. सबसे पहले MX जो है वो MX का बहुत धन्यवाद है, क्योंकि फ्री ऐप होने के साथ साथ मेरे ख्याल से यूट्यूब के बाद एकमात्र ऐसा वो प्लेटफॉर्म है जिनके कुछ 1 बिलियन डाउनलोड्स हैं. और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड की तरह है कि भाई ये लोग, मैं अभी रामनगर गया था उत्तराखंड में, वहाँ के किसी सुदूर इलाके, बहुत ही ग्रामीण इलाके में गया था, तो वहाँ भी लोगों को पता है कि MX Player है और उस पर रक्तांचल आता है, उस पर आश्रम आता है. तो जो रीच है वो लोगों तक फ्री ऐप होने की वजह से बढ़ी है. लेकिन जो कंटेंट भी है, अगर आप देखें तो कंटेंट MX का समाज के हर वर्ग के लिए है. जहाँ पे एक आपको रक्तांचल है तो वहाँ पे आश्रम भी है, फिर कॉलेज डायरीज भी, कैंपस डायरीज भी है. तो चाहे युवा हो, चाहे वो कोई अगर एक्शन देखना चाहते हो, फिर एक भौकाल भी है. तो MX का हमेशा से, मैं मेरे ख्याल से 2 साल से 2.5 साल से MX के साथ जुड़ा हुआ हूँ. तो जिस तरह के कंटेंट मैं वहाँ देखता हूँ और वो लोगों को पसंद आता है. मैं अगर बिहार में कहीं कभी भी जाता हूँ या यूपी ही जाता हूँ तो वहाँ पे लोग, जितना MX के बारे में पता है लोगों को, उतना शायद बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी. तो मेरे ख्याल से ये जो MX ने एक शक्ति दी है ऑडियंस के हाथ में कि भाई आपको जिस तरह की चीज देखनी, हम अच्छा बनाते रहेंगे, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर हमें प्रोत्साहन दें, और अगर नहीं लगे तो और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे. तो आपके सवाल का उत्तर देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है जो MX की वजह से मेरे ख्याल से ऑडियंस के साथ हो रही है. आई थिंक MX Player को आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए. आपने बहुत ही ना सिर्फ रक्तांचल को आपने प्रमोट किया, आपने पूरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया बहुत अच्छे तरीके से.